Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, beta, I am going to start with the lecture. First of all, yesterday's content. I will continue with the topics I discussed yesterday. First of all, definition of constructor. I have already discussed this one. Definition of constructor. The second point I would like to discuss is syntax of constructor. I have already assigned to you this work. Syntax of constructor. Maybe some of the students gone through this topic. Before writing the syntax, we have to write syntax rules. Is it okay? Directly, sometimes we jump to the point that is write the syntax, and we are start writing the syntax of some topic. But it's better practice that if we are writing some syntax rules. Is it okay? Is it okay? Yes, sir. Syntax rules. Now, what are the various syntax rules for designing a constructor? First part, number one. Any idea? A constructor must have same name as that of class. Is it okay? Is it okay? A constructor must have same name as that of class name. And second one, it's declared without any return type. Is it okay? Return type is not required. Return type is not required. Part C. Any other point you know about constructor? Any student who would like to add something? Because we have already completed with some programs of constructor. A constructor, first point is clear or not? A constructor must have the same name as that of class name. Second one, it is declared without any return type, means return type is not required. Part C. In main function, there is no need to call constructor. Is it true? Yes, sir. There is no need to call constructor. It is automatically called. Is it okay? Yes, sir. Any other point you would like to share? Any other point? These are the three important points. Any other point you would like to share? Suppose I am talking about point D. Now this point is up to you. आप देखोगे इसको कि कैसे इसको करना है हमने. Assess specifiers. आप बताओगे मुझे कि कहां पे होगा ये. Assess specifiers.
कौन कौन से एसएस स्पेसिफायर्स थे? पब्लिक, सेकंड इज Private. प्राइवेट, एंड थर्ड इज Protected. प्रोटेक्टेड। यस, सपोज मैंने कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो इनमें से कहां बनाऊंगा मैं? पब्लिक में बनाऊंगा या प्राइवेट में या प्रोटेक्टेड में? मींस कंस्ट्रक्टर वेदर इट इज पब्लिक और प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, कहां पे होगा ये? Sir, public. एनी आइडिया? कहां पे होगा बेटा? Sir, public. पब्लिक में। ओके, एनी अदर आइडिया? कोई स्टूडेंट ये बोलना चाहता है कि प्राइवेट में होगा? कोई स्टूडेंट ये बोलना चाहता है कि प्रोटेक्टेड में होगा, या ओनली प्राइवेट? बोलो बेटा। सपोज ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाता है कि आप कहां पे कंस्ट्रक्टर को बना सकते हो, तो आप कहां पे बना सकते हो? सपोज मैंने यहां पे ऑप्शन दे दी पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, नन ऑफ द अबव, तो मे बी मैक्सिमम स्टूडेंट पब्लिक पे हिट करेंगे। इज इट ट्रू? Yes, sir. बट कंस्ट्रक्टर को हम पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड कहीं पे भी बना सकते हैं। क्लियर हो गया क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. कंस्ट्रक्टर है क्या? बेसिकली कंस्ट्रक्टर इज वन मेथड, ये एक मेथड है विच इज ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड, जो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाता है, उस मेथड को हम कंस्ट्रक्टर बोल रहे हैं। कंस्ट्रक्टर कोई नई आइटम नहीं है, इट्स ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज्ड मेथड। ये मेथड हम पब्लिक में भी बना सकते हैं, मेथड पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। ये तो असेसिंग का पॉइंट है ना। जैसे फोटोग्राफ मैंने अपलोड की फेसबुक पे, जैसे ही मैं कोई फोटोग्राफ अपलोड करता हूं, उसमें कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है ना कि मैं पब्लिक में नहीं कर सकता, या प्राइवेट में नहीं कर सकता, या प्रोटेक्टेड में नहीं कर सकता। ऐसा कोई कंडीशन है या नहीं? No, sir. ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मैं पब्लिक में भी कर सकता हूं, प्राइवेट में भी कर सकता हूं, प्रोटेक्टेड में भी कर सकता हूं। सिमिलरली आई कैन डिजाइन एनी कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्टर, मींस कंस्ट्रक्टर में बी पब्लिक, कंस्ट्रक्टर में बी प्राइवेट, कंस्ट्रक्टर में बी प्रोटेक्टेड। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर है बेटा? 4 पॉइंट्स बिफोर राइटिंग द सिंटेक्स। अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, जैसे ही आपने किसी टॉपिक का, सपोज इफ एल्स की बात कर रहे हैं या फॉर लूप की बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी कंटेंट की बात, किसी भी टॉपिक की बात कर रहे हैं हम, किसी भी प्रोग्रामिंग में, ऐसे ही आपने सिंटेक्स लिखना है। सबसे पहले सिंटेक्स के रूल्स लिखो। इज इट ओके? Yes. पता चल गया क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. बिफोर राइटिंग द सिंटेक्स, ट्राई टू राइट द रूल्स ऑफ द सिंटेक्स, उसके बाद सिंटेक्स डिजाइन करो। अब हम सिंटेक्स की बात करेंगे। अब सिंटेक्स क्या है? सिंटेक्स के इनसाइड क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले क्या होना चाहिए ये बताओ मुझे। पहले तो मैं लिखूंगा यहां पे क्लास। इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद मैं कोई भी नेम लिख दूंगा, यूजर नेम। इज इट ओके? यूजर ने कोई भी नेम दे दिया। उसके बाद इनसाइड यहां पे मैंने लिख दिया प्राइवेट, डबल कॉलन, यहां पे कोई भी कमेंट आ गए, कोई भी स्टेटमेंट्स आ गई, यहां पे आ गया सेमी कॉलन। आफ्टर दैट प्राइवेट के बाद यहां पे मैंने मेंशन कर दिया प्रोटेक्टेड, और प्रोटेक्टेड के इनसाइड यहां पे कुछ स्टेटमेंट्स आ गई। इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे ले लिया पब्लिक, जो जनरली हम करते हैं, पब्लिक। और पब्लिक के इनसाइड मैंने यहां पे एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, उसके बाद लगा दिया सेमीकोलन, और दिस वन इज कंस्ट्रक्टर। यहां पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये कंस्ट्रक्टर है।
इज इट ओके? Yes, sir. उसके बाद यहां पे भी अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट्स देनी है तो यहां पे मैं स्टेटमेंट्स दे सकता हूं इन एडिशन टू दिस वन। उसके बाद मैंने ब्रैकेट कर दी क्लोज और फिर लगा दिया सेमीकोलन। ये हो गया मेरा सिंटैक्स कंप्लीट। दिस वन इज कंप्लीट सिंटैक्स। अब यहां पे मैं मेंशन करूंगा कंस्ट्रक्टर मे बी private, protected or public, but in above syntax what I am doing, I am representing constructor as public. Is it okay? Yes, sir. पता चल गया बेटा? मीन्स आप प्राइवेट में भी कर सकते हो, प्रोटेक्टेड में भी कर सकते हो, पब्लिक में भी कर सकते हो, बट यहां पे मैंने क्या किया, मैंने पब्लिक में ले लिया। सिंटैक्स क्लियर हो गया? इसके बाद सपोज मैंने इसकी बॉडी बनानी है, इसमें इनसाइड कुछ ना कुछ पास करना है। दिस वन इज ओनली द डिक्लेरेशन, मैंने डिक्लेरेशन की है। अब आउटसाइड क्लास मैंने इसको बनाना है, तो क्या करूंगा मैं, यूजर नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर यूजर नेम, उसके बाद इसकी बॉडी। यहां पे स्टेटमेंट्स आएंगे। इज इट ओके? इसमें कोई डाउट बेटा सिंटैक्स में? No, sir. सिंटैक्स क्लियर हो गया? सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखनी है डेफिनेशन। ये ऑलरेडी करवा दी थी मैंने कल, जो कल वाले नोट्स थे उनमें से डेफिनेशन उठा लेना। सबसे पहले आपने लिखनी है डेफिनेशन, उसके बाद आपने लिखने हैं सिंटैक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, लिख के हेडिंग सिंटैक्स के रूल्स लिखने हैं। रूल्स लिखने के बाद उसके बाद आपने सिंटैक्स लिखना है, दिस वन। क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. उसके बाद आपने एक सिंपल प्रोग्राम, सपोज मैंने अभी एक प्रोग्राम डिजाइन किया है, वो प्रोग्राम क्या है, एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, मे बी आपने पहले किया हो सी लैंग्वेज में, फिबोनाची सीरीज। Yes, ये किया था? Yes, sir. ओके, मैं फिबोनाची सीरीज को सी प्लस कंस्ट्रक्टर के थ्रू करूंगा। फिबोनाची सीरीज को C++ में कंस्ट्रक्टर के थ्रू एग्जीक्यूट करूंगा। अब सबसे पहले फिबोनाची सीरीज होती क्या है, फिबोनाची सीरीज में सपोज मैंने फर्स्ट नंबर ले लिया 2, उसके बाद ले लिया 5, उसके बाद जो थर्ड नंबर है ये इन दोनों की एडिशन होगी 7, उसके बाद जो फोर्थ नंबर है ये 5 + 7 होगा, दैट इज 12, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 7 + 12 दैट इज 19, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 12 + 19 दैट इज 31, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 31 + 19 दैट इज 50, अप टू सो ऑन। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिस वन इज फिबोनाची सीरीज। अब फिबोनाची सीरीज में हो क्या रहा है, यहां पे जो कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशंस बन रही हैं, जो मेरा प्रोग्रामिंग स्टाइल है वो डिफरेंट है। मैं सबसे पहले उस बेस को स्टडी करता हूं, मैं कभी भी प्रोग्राम को लर्न नहीं करता, प्रोग्राम की लर्निंग कभी नहीं करनी चाहिए। इज इट ओके? Yes, sir. प्रोग्राम का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है, प्रोग्राम का बेस क्लियर होना चाहिए, जैसे इस प्रोग्राम में हो रहा है। बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पॉइंट, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट नंबर एंड second number is given to you. Is it okay? Yes, sir. फर्स्ट एंड सेकंड नंबर आपको गिवन होगा, आप यूजर की तरफ से भी एंटर कर सकते हो।
यहां पे मैं मेंशन कर रहा हूं, इट मे बी स्टैटिक और डायनामिक। ये स्टैटिक भी हो सकता है, डायनामिक भी हो सकता है। स्टैटिक का क्या मीनिंग है? गिवन बाय द प्रोग्रामर। Yes, इज इट sir. ओके? डायनामिक मीन्स Given by user. गिवन बाय द यूजर। User. यस, गिवन बाय द यूजर। अब अगर तो यूजर एंटर कर रहा है तो उसको हम डायनामिक बोलेंगे। अगर प्रोग्रामर ने इसको ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि फर्स्ट वैल्यू ये है, सेकंड वैल्यू ये है, इसको क्या बोलेंगे हम? कि प्रोग्रामर ने बता दिया। इज इट ओके? ये फर्स्ट कंडीशन थी। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है फिबोनाची सीरीज में? सेकंड इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब मेरे पास फर्स्ट नंबर आ गया ए, उसके बाद सेकंड नंबर आ गया बी। फर्स्ट नंबर इज ए, सेकंड नंबर इज बी। अब जो थर्ड नंबर है वो आएगा ए प्लस बी। उसके बाद जो फोर्थ नंबर है ये आएगा ए प्लस 2b। इज इट ओके? Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 2a प्लस 3b, लाइक दिस। ऐसे नंबर बनेंगे। ये ट्रिपलेट बन गया, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट में क्या हो रहा है? जो थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर इज द सम ऑफ First two फर्स्ट number. नंबर एंड सेकंड नंबर। इज इट ओके? Yes, sir. थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। बट अगर मैं लूप लगाऊंगा, सपोज मैंने लूप लगा दिया, तो लूप में क्या होगा? ये थर्ड नंबर आ जाएगा मेरे पास। थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। अब लूप में मुझे शिफ्टिंग करनी होगी। इसको हम बोलते हैं लूप के इनसाइड स्वैपिंग। स्वैपिंग से बेटर वर्ड है, स्वैपिंग ठीक नहीं है वर्ड। स्वैपिंग की प्लेस पे यहां मैं शिफ्टिंग अगर यूज कर लूं, आई थिंक दैट वन इज बेटर। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ डाटा इज रिक्वायर्ड। अब शिफ्टिंग ऑफ डाटा कैसे है? जैसे ये नंबर आ गया हमारा फर्स्ट नंबर, उसके बाद सेकंड नंबर, उसके बाद थर्ड नंबर, उसके बाद फोर्थ नंबर, उसके बाद फिफ्थ नंबर, उसके बाद सिक्स। सपोज ये नंबर है। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो रहा है कि थर्ड नंबर इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। इज इट ओके? Yes, sir. सेकंड में क्या हो रहा है? फोर्थ नंबर इज द सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद क्या हो रहा है कि फिफ्थ नंबर इज द सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ। ये कंडीशन चल रही है। ऐसे ही होगा बेटा? Yes, sir. ये कंडीशन ऐसे एग्जीक्यूट होगी। अब देखते हैं प्रोग्रामिंग में हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन क्या थी प्रोग्रामिंग के लिए? हेडर फाइल्स। फर्स्ट इज हेडर फाइल। हेडर फाइल मैंने यहां पे मेंशन कर दी, इंक्लूड। जो हमारी C++ की मेन हेडर फाइल है उसको मैंने यहां पे मेंशन कर दिया। इज इट ओके? Sir. उसके बाद सेकंड में मैंने क्या लिखा? नेम स्पेस। नेम स्पेस का कंटेंट यहां पे मेंशन कर दिया, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। इज इट ओके? Yes, उसके sir. बाद थर्ड स्टेप, डिजाइनिंग ऑफ क्लास। अब मैं क्लास की डिजाइनिंग करूंगा। क्लास की डिजाइनिंग मैंने यहां पे की। क्लास, सपोज मैंने यहां पे नेम लिख दिया टेस्ट। क्लास का नेम लिख दिया टेस्ट, या फिबोनाची आप लिख सकते हो। आप फिबोनाची लिख दो, आई थिंक इट्स बेटर। सपोज यहां पे मैंने क्लास का नेम लिख दिया फिबो। इज इट ओके? फिबो स्टैंड्स फॉर फिबोनाची। उसके बाद मैंने क्या किया, यहां पे असेस स्पेसिफायर ले लिया प्राइवेट। प्राइवेट में मैंने वेरिएबल्स ले लिए, इंट a, b, c। इज इट ओके? Yes, sir.
अब जनरली क्या होता है, जैसे स्टूडेंट फर्स्ट टाइम स्टूडेंट पूछता है कि सर प्रोग्रामिंग में मुझे दिक्कत आ रही है, प्रोग्रामिंग में मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। प्रोग्रामिंग आप जब बनाते हो फिर तो पता चल जाता है, जैसे ही मैं अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम बनाता हूं तो मुझे इश्यू आता है, ये होता है या नहीं? Yes, sir. ऐसे कोई प्रोग्राम नया दे दिया, किसी टीचर ने बोला कि आपने ये प्रोग्राम बनाना है, वो प्रोग्राम नेट पे अवेलेबल नहीं है। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे ही कोई असाइनमेंट हमें मिलती है, वी गो टू गूगल। होता है ऐसे? Yes, sir. ऑनेस्ट ऑनेस्ट आंसर देना। हम जनरली क्या करते हैं, अपना जो ब्रेन है ना उसका यूज नहीं करते, हम अपने ब्रेन से ज्यादा गूगल पे विश्वास करते हैं कि गूगल ठीक है, मेरा ब्रेन ठीक नहीं है। Yes, ऐसा sir. होता है? जबकि इसी ब्रेन ने गूगल बनाया है, इसी ब्रेन ने किसी ना किसी ब्रेन ने गूगल बनाया है। ब्रेन में से गूगल निकला है, गूगल में से ब्रेन नहीं निकला, ये याद रखो। ब्रेन में से गूगल निकला है। अगर आप अपनी तरफ से काम करोगे तो ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। इज इट ओके? Yes, sir. ट्राई करो, कोई बात नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट में रॉन्ग हो जाएगा कोई इशू नहीं है, सेकंड अटेम्प्ट में रॉन्ग हो जाएगा कोई इशू नहीं है, बट जब प्रोग्राम बनेगा तो आपको एक अजीब सी खुशी मिलेगी। डन? Yes, sir. अब मैंने क्या किया, मैंने 3 वेरिएबल्स ले लिए। अब वेरिएबल जो मैं बात कर रहा था यहां पे, वेरिएबल्स हम सबसे पहले डिक्लेयर नहीं कर सकते। वी कांट डिक्लेयर द वेरिएबल्स एट फर्स्ट स्टेप। हमारा पहले प्रोग्राम बनेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि वेरिएबल्स कितने मुझे चाहिए। इज इट ओके? फर्स्ट अटेम्प्ट में ये एम्प्टी रहेगा, ये कंटेंट इंट, उसके बाद एम्प्टी। मुझे पता ही नहीं है कि मुझे वेरिएबल्स कितने चाहिए। सपोज मुझे वेरिएबल 10 चाहिए तो मैं 10 वेरिएबल्स यूज करूंगा। Yes, sir. इज इट ओके? जो कॉपी पेस्ट करता है उसको पता होता है कि वेरिएबल्स कितने हैं। अगर हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, अपनी तरफ से प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हमें वेरिएबल्स का कोई आइडिया नहीं है कि कितने वेरिएबल्स चाहिए। वी कांट राइट द वेरिएबल्स इन फर्स्ट स्टेप, हमें पता ही नहीं है। इज इट ओके? Yes, sir. इज इट ओके? हाँ, मैंने प्रोग्राम पहले बनाया हो इसलिए मुझे पता है, बट अगर आप अपनी तरफ से प्रोग्राम बनाओगे तो पहले आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि वेरिएबल्स कितने हैं। आप प्रोग्राम पहले बनाओगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स मुझे चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिक्लेयर करेंगे टॉप पे। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद Yes, मैंने sir. पब्लिक लिया, असेस स्पेसिफायर। पब्लिक के इनसाइड मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, फिबो एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, ये कंस्ट्रक्टर है। इज इट ओके? मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया, और कंस्ट्रक्टर का मुझे कैसे पता चला? फर्स्ट वन, क्लास नेम एंड मेथड नेम इज सेम। सेकंड वन, नो रिटर्न टाइप। Yes, इज इट ओके? sir. मुझे पता चल गया कि ये कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद मैंने मेथड बनाए। मेथड अब मुझे कौन कौन से चाहिए? एक मेथड तो मुझे चाहिए इंक्रीमेंट का, इंक्रीमेंट। एक मुझे मेथड चाहिए डिस्प्ले वाला। ये 2 मेथड मुझे चाहिए। अब इंक्रीमेंट का क्या मीनिंग है, बता सकते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीमेंट? अब बेसिकली होता क्या है, जैसे ही मैं फिबोनाची सीरीज की बात करूंगा, मैंने बोला था कि यहां पे फर्स्ट नंबर है, उसके बाद सेकंड नंबर है, उसके बाद थर्ड नंबर है, उसके बाद फोर्थ नंबर, उसके बाद फिफ्थ नंबर। Yes, यही था। sir. फर्स्ट में मैंने क्या किया, ये 3 वेरिएबल्स ले लिए। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वेरिएबल काम आएंगे। उसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ वेरिएबल। अब मुझे इंक्रीमेंट करना होगा। किसका इंक्रीमेंट करना होगा? मींस फर्स्ट अटेम्प्ट में एबीसी, ये 3 नंबर्स हैं। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में ये वाले 3 नंबर्स एबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। इज Yes, इट ओके? sir. और थर्ड अटेम्प्ट में जो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ नंबर है, ये एबीसी में कन्वर्ट हो जाएगा।
और ये कब तक कन्वर्ट होता रहेगा? जब तक सीरीज कंप्लीट नहीं हो जाती, अप टू द कंप्लीशन ऑफ सीरीज। डन? Yes, sir. पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूं? अप टू द कंप्लीशन ऑफ सीरीज वी हैव टू इंक्रीमेंट, हमें इंक्रीमेंट देना होगा। ये तो बन गई हमारी क्लास। अब क्लास बनने के बाद उसके बाद हमने मेथड्स पे काम करना है कि कौन कौन से मेथड्स है। मेथड्स हमारे 3 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड कौन सा था? कंस्ट्रक्टर। सेकंड मेथड कौन सा था? इंक्रीमेंट। बोलो। थर्ड मेथड कौन सा था? Display. डिस्प्ले। ये 3 मेथड्स हैं, इन पे हमने काम करना है। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, मैंने हेडिंग दिया है। अब मैं प्रोग्राम के पार्ट की बात कर रहा हूं कि प्रोग्राम के इनसाइड हमने क्या लिखना है। यहां पे मैंने मेंशन किया सबसे पहले फिबो, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन, उसके बाद फिबो लाइक दिस। इसका क्या मीनिंग है बेटा? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके मैंने फिबोनाची, जो मैंने फिबो बनाया है कंस्ट्रक्टर, उसकी बॉडी आउटसाइड द क्लास बना रहा हूं। इज इट ओके? Yes, sir. आउटसाइड द क्लास। अब मैंने फर्स्ट वेरिएबल ले लिया a इज इक्वल टू 2। इज इट ओके? फर्स्ट वेरिएबल मैंने ले लिया a इज इक्वल टू 2। उसके बाद सेकंड वेरिएबल ले लिया b इज इक्वल टू 5। उसके बाद मैंने थर्ड वेरिएबल लिया c इज इक्वल टू, यहां पे मेंशन कर दिया a प्लस b। इज इट ओके? Yes, sir. What is the meaning of this? This one is static content. Static content. मैंने static content ले लिया। This one is also static content. Means प्रोग्रामर ने बता दिया कि फर्स्ट नंबर 2 है, सेकंड नंबर 5 है, एंड दिस वन थर्ड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। इज इट ओके? Yes, sir. अब सेकंड कंटेंट। अब मैं क्वेश्चन पुट करूंगा, थोड़ा ध्यान से देख लेना। उसके बाद मैंने क्या किया, जो सेकंड मेथड था वॉइड, किसको अटैच करना है हमने? फिबोनाची क्लास है, फिबोनाची क्लास के साथ किसको अटैच करना है? इंक्रीमेंट को। मींस इंक्रीमेंट जो मैंने मेथड डिक्लेयर किया था उसकी बॉडी बनानी है। अब इंक्रीमेंट में क्या होगा? मैंने यहां पे मेंशन कर दिया a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू a प्लस b। इसका मीनिंग बता सकते हो बेटा क्या है? Yes, sir. इसका मीनिंग क्या है बता सकते हो? इसका मीनिंग बता सकते हो? क्या मीनिंग है इसका? स्वैप हो रहे हैं। नो इश्यू, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। फर्स्ट जो कंटेंट था उसमें मैंने क्या किया? a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू कितनी हो गई? 2 प्लस 5 7। Yes, sir. ये फर्स्ट कंटेंट में मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैंने सेकंड में इंक्रीमेंट में क्या मेंशन किया? a इज इक्वल टू b। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? वैल्यू ऑफ b इज असाइंड टू a। अब b की वैल्यू कितनी है? 5। अब a की वैल्यू 5 हो गई। इज दैट ओके? Yes, sir. a इज इक्वल टू b, b की वैल्यू कितनी है? 5। अब यहां पे मेंशन क्या किया है? b इज इक्वल टू c, c की वैल्यू कितनी है? 7। इट मींस b की वैल्यू हो गई 7। क्लियर हो गया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद लास्ट में मैंने क्या मेंशन किया? c इज इक्वल टू a प्लस b। अब a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 7 है। यहां पे 5 प्लस 7, यहां पे होगा 12। Yes. इज इट ओके? Yes, sir.
इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा, पता चल गया? यस सर। अब मैंने क्या किया, जो थर्ड स्टेप था, थर्ड में मैंने मेंशन किया void फिबो नेम ऑफ क्लास देन डिस्प्ले। अब मुझे डिस्प्ले करवाना है कंटेंट को, तो लास्ट मेथड था। अब डिस्प्ले पे मैंने क्या किया, सिंपली यहां पे मेंशन कर दिया सी आउट, उसके बाद यहां पे मैंने मेंशन कर दिया सी, उसके बाद यहां पे लिख दिया टैब। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। सी को मैंने डिस्प्ले कर लिया। अब मैं बनाऊंगा मेन फंक्शन। फंक्शन में क्या करना है, इंट मेन। अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, लास्ट में मैंने मेंशन करना है रिटर्न 0। इज इट ओके? ये मेरा मेन फंक्शन बन गया और यहां पे मैंने कंटेंट राइट करना है। कंटेंट राइटिंग में क्या क्या आएगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, क्लास यहां पे मेंशन किया फिबो, उसके बाद लिख दिया एफ। क्या मीनिंग है इसका? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बना लिया। यस। इसके बाद क्या करूंगा मैं, बता सकते हो? अब मैंने एक फॉर लूप लिया, फॉर लूप। अब फॉर लूप की रिक्वायरमेंट क्यों है ये बताता हूं। अभी आई की वैल्यू ले ली 0, उसके बाद आई लेस देन इक्वल टू 15, उसके बाद मेंशन कर दिया आई प्लस, और इनसाइड फॉर लूप यहां पे मैंने लिखा एफ डॉट डिस्प्ले, उसके बाद मैंने लिखा एफ डॉट इंक्रीमेंट। अब बता सकते हो इसका मीनिंग क्या है, मैंने ये फॉर लूप यूज क्यों किया? Yes, sir. ये 15 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, इट विल एग्जीक्यूट। मैंने कहीं पे भी आई की वैल्यू यूज नहीं की, कहीं पे भी आई की वैल्यू यूज नहीं की। इट विल एग्जीक्यूट 15 टाइम्स, मीन्स अप टू 15 नंबर्स यू कैन डिस्प्ले। इज इट ओके? यस सर। बट यहां पे एक मिसिंग है कंटेंट, आई थिंक वी हैव टू डिक्लेयर आई, इंट आई। इज इट ओके? Yes, sir. डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड। दिस वन इज द कंप्लीट प्रोग्राम। आप प्रोग्राम करें ट्राई सिस्टम पे, प्लेटफॉर्म पे Sir. प्रोग्राम ट्राई करें बेटा। तो सर हमने 0 और 1 को तो प्रिंट कराया नहीं सर। क्या बोल रहे हो? तो सर स्टार्टिंग में जैसे क्या बोल रहे हो? आएगा सर उसको प्रिंट कराया नहीं हमने। 0 और 1? यस सर। 0 और 1 कहां पे चाहिए आपको? सर फिबोनाची से में सर स्टार्टिंग में 0 1 1 पे 2 5 7 ऐसे आते सर। ओके ओके ओके, मैं एक मिनट मैं क्लियर करता हूं आपको, आप क्या पूछ रहे हो। आप ये बात कर रहे हो 0 1, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, यही बात कर रहे हो बेटा? यस सर। आई थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट दिस 0 and 1। यस सर। बट मैं क्या बात कर रहा हूं, जो मेरी बात है, मैं डायनामिक की बात कर रहा हूं। आप कोई भी नंबर ले सकते हो। मैंने यहां पे 2 and 5 ले लिया, उसमें क्या है, यू कैन टेक 2 and 5। फिबोनाची सीरीज ऐसा थोड़ा है फिबोनाची सीरीज 0 and 1 से ही स्टार्ट होगी। फिबोनाची सीरीज किसी भी नंबर से स्टार्ट हो सकती है। मैंने 2 and 5 ले लिया, आप 2 and 5 की प्लेस पे आप 0 and 1 ले लो, कोई इशू नहीं है। ये देखो यहां पे मैंने मेंशन किया 2 and 5, आप यहां पे 0 and 1 मेंशन कर सकते हो, आप यूजर की तरफ से एंटर भी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। क्लियर हो सर गया? हमने यस सर। सर हमने ए और बी की वैल्यू तो शो करवाई नहीं है, डिस्प्ले नहीं करवाई।
हमने ए एंड बी की वैल्यू भी शो कर सकते हो आप। मैंने सी की वैल्यू से स्टार्ट किया, अब हमारा पता क्या होगा, प्रोग्राम कैसे आएगा। इसीलिए मैंने प्रोग्राम जो है प्लेटफॉर्म पे करूंगा अभी। ये देखो, अब आउटपुट हमारी कैसे आएगी। मैंने ए की वैल्यू ले ली 2, बी की वैल्यू ले ली 5। इज इट ओके? तो मेरा फर्स्ट नंबर है वो 7 आएगा डिस्प्ले पे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 7 + 5 12 आएगा। उसके बाद 19। ये कंटेंट आएंगे डिस्प्ले पे। अगर आप ए एंड बी को भी डिस्प्ले करना चाहते हो तो हम यहां पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, यस सर। पहले सी आउट लिख के ना, यहां पे ये देखो, यहां पे एक मैं ब्लॉक बनाने लगा हूं। यहां पे आप सी आउट लिख के, सी आउट, उसके बाद आप क्या लिख सकते हो यहां पे, ए, उसके बाद टैब, उसके बाद आप बी लिख सकते हो। इज इट ओके? उसके बाद फिर टैब लगा देना, उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। यहां पे टैब लगा दो, सेमीकोलन। पहले ए आ जाएगा, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद फिर टैब लग जाएगी। बट इसमें आपको एक काम करना पड़ेगा। अगर आप 15 नंबर से डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो यहां पे 15 नहीं आएगा। फिर अगर आप 15 नंबर से डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो एक और काम होगा, 0 to 15, यहां पे 16 नंबर्स आएंगे। इफ आई स्टार्ट फ्रॉम 1 तो यहां पे 15 तक आ जाएगा, 15 नंबर्स आएंगे। और अगर मैं 15 नंबर से डिस्प्ले पे लाना चाहता हूं तो यहां पे 15 नहीं आएगा, आई हैव टू राइट 13। इज इट ओके? यस सर। तो टोटल Yes, sir. नंबर कितने डिस्प्ले पे आएंगे, 15 नंबर से डिस्प्ले पे आएंगे। इज इट ओके? यस सर। कोई डाउट बेटा प्रोग्राम में? प्रोग्राम क्लियर हो गया या नहीं? अब इसको Yes, sir. इसको हम प्लेटफॉर्म पे करके देखते हैं, सो दैट वी कैन क्लियर द कंटेंट। इज इट ओके? प्लेटफॉर्म पे ट्राई करते हैं। इसको सेव कर लेते हैं। जो हमारा टर्बो सी का प्लेटफॉर्म है उस पे ट्राई करते हैं। टर्बो सी का हो गया या कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म हो गया, कोई इशू नहीं है। आपने इंस्टॉल कर लिया बेटा जो न्यू प्लेटफॉर्म मैंने बताया था? यस सर। गुड वन, गुड, दैट्स ग्रेट। आप साइड बाय साइड इसकी प्रैक्टिस करते रहना। यस सर। हाँ, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पीछे रह जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। प्रैक्टिस जरूर करना। सर कौन सा प्लेटफॉर्म? देव C++ की बात कर रहा हूं बेटा। ओके सर। हाँ, वो डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। न्यू प्लेटफॉर्म है और बढ़िया प्लेटफॉर्म है कंपैरेटिव टू अदर। मैं दिखाता हूं अभी, अगर आपने पहले नहीं देखा, कुछ स्टूडेंट्स ने पहले चेक किया है। ये वाला प्लेटफॉर्म है बेटा, विजिबल है? यस सर। अब हम करते हैं इसका प्रोग्राम, सो दैट वी कैन कंप्लीट द टॉपिक। एक्चुअली टॉपिक कंप्लीशन इज स्टिल नॉट देयर। अभी हमने थ्योरेटिकल कंटेंट किया है। थ्योरेटिकल कंटेंट में मैंने बोर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं सो दैट आई कैन एक्सप्लेन वेल। एक्सप्लेनेशन पुअर हो जाती है इफ वी आर यूजिंग ओनली पीपीटी। आई थिंक यू एग्री विद दैट। होता है ऐसा? Yes, sir. If we are using only PPT, then I think it's not the better explanation. अब हम प्रोग्राम की बात करेंगे। प्रोग्राम आ गया हमारा, यहां पे हम टाइटल दे दो, फिबोनाची सीरीज इन C++ using constructor. Is it okay? Fibonacci series in C++ using constructor. Done? ये टॉपिक ठीक है बेटा? Yes, यही sir. टॉपिक बनेगा। This one is the topic. Okay. After that, include IOStream, then
using namespace standard, then class Fibo, and inside class what's required? आप बताओ बेटा, अभी अभी प्रोग्राम करवाया है, बताओ क्या था पहला स्टेप क्या था? प्राइवेट सर। प्राइवेट के इनसाइड क्या था बेटा? वेरिएबल्स, int a comma b comma b c. c. 3 variables are there. You can take any variables. You can write lmn or xyz, whatever the variables you would like to write, you can write. After that, public, and inside public, what's required? First one is constructor, and second one is void increment. Suppose I am using inc only. Is it okay? For increment. Then void display. Done? Yes sir. Three contents are there. Done? 3 methods are there. First one is 3 variables, and second one is 3 methods inside public. And after that, Fibo. Again we have to write Fibo, and then body of this constructor. What we have to write? Suppose I am writing A is equal to 2, B is equal to 3, and C is equal to A plus B. Is it okay? Yes sir. This one is the first content. Program is too much simple. If you know about the content, you can write the program easily. What about the second step? Fibo, What about the next step? Fibo scope resolution. Okay. Then Fibo, and after that, Increment. Yes sir. Increment is required. Yes. This space is not required. Increment, and inside increment, what I have to write? A is equal to B. B is equal to C, and again C is equal to A plus B. A plus B. So it's again simple. And last one is Fibo display. Then display. Yes. DISC. You can design the program easily, no issues. See out, and inside see out, what we have to write? Suppose I am displaying only T in first step. After that, we will improve the program. Is it okay? This one is the content. After designing this content, what's required? Main function. Int main. Now, what's required inside this? Ab बताओ बेटा. Return. What I have to write? 0. And here, what I have to write? Bolo. What I have to write? Class Fibo F. Class Fibo, then F, or you can write obj. Is it okay? Yes sir. It's also the best practice. Fibo, then object. Fibo is a class name, and you can write obj. After writing this, I think one variable is required, int I for loop. Yes sir. And for I is equal to 1, I less than equal to, suppose I am writing 5, I plus plus. Is it okay? Yes sir. Then what I have to write? Obj dot. Display. In first step, display is required. And in second step, Increment.
Increment is required. Yes. Increment is required. Done. I think program is over. Yes, sir. Program is over. Now save the content and execute. FIFO increment. Okay. I think the return type is required here because it's not constructor. You have to write a return type. Void. Is it okay? You have to write a return type because it's not constructor. In case of constructor, it's okay. This one. But here you have to write a return type, whatever the return type, write inside here. Inside the title. Now again save the program and execute. Is it okay? 5, 8, 13, 21 and 34. Yes, sir. The starting point is 5. Suppose I have to display first and second number. Then what I have to do? What I have to do? I can display these two values, Yes, sir. 2 and 3. You can write here also. Cout A. Then you can write tab. Here you can write B. Then again you can write tab. Is it okay? And semicolon. Now again execute the program. Is it okay? 2, 3, 5, 8, 13, 21 and 34. क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. बट यहां पे नंबर्स कितने आ रहे हैं? How many numbers are there? How many numbers are there? I am writing 5 here, but on display 7 numbers are there. Suppose I am entering the data from user side. Okay. Suppose I am writing n here, and inside cout how many numbers you want to display. Suppose मैंने ऐसे मेंशन कर दिया. Is it okay? Yes, sir. और यहां पे एंटर करवा दिया cn, n को एंटर करवा दिया. n की एंट्री के बाद यहां पे मैंने n मेंशन कर दिया. Is it okay? क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. How many number you want to display? उसके बाद मैंने n को एंटर कर दिया और यहाँ पे लूप में मैंने in place of number मैंने n डाल दिया. अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट. अब मैंने किया इसको एग्जीक्यूट. ये देखो यहां पे क्या कंडीशन आ गई? 2 and 3 पहले डिस्प्ले पे आ गया, उसके बाद आया हाउ मेनी नंबर यू वांट टू डिस्प्ले. उसके बाद मैंने सपोज यहाँ पे 4 लिख दिया, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर डिस्प्ले पे आ गए. ये ऐसे क्यों हुआ बता सकते हो? ये आउटपुट ऐसे क्यों आ रही है? 2 and 3 तो पहले डिस्प्ले पे आ गए, उसके बाद आ गया हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू डिस्प्ले, उसके बाद 4 नंबर्स और आ गए. इसको अगर मैंने करेक्ट करना है तो कैसे करूंगा? cout पहले लगाया होता. यस. यहां पे हमने क्या किया? डिस्प्ले में नहीं डाला इसको. अब इसको हम कट करेंगे यहां से. यहां से कट कर लो. ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप पहले मिस्टेक करो, उसके बाद आप सीखोगे. यहां पे मैंने कंडीशन लगा दी. इज इट ओके? Yes, sir. मैंने डिस्प्ले में डाल दिया. अब इसको मैंने फिर एग्जीक्यूट किया और यहां पे आ गया हाउ मेनी नंबर्स यू वांट टू डिस्प्ले. यहां पे मैंने लिखा 5. ये देखो कितने नंबर आ गए.
अब इसको ठीक करना है तो कैसे करूंगा? ये तो रॉन्ग है डाटा, इसमें मिस्टेक क्या है मुझे ये बताओ। पहले आ गया 2 3 5, उसके बाद 3 5 8, उसके बाद आ गया 5 8 13, उसके बाद आ गया 8 13 एंड 21, उसके बाद आ गया 13 21 एंड 34। ये आउटपुट कैसे आ रही है बता सकते हो? बता सकते हो बेटा आउटपुट कैसे आ रही है? एनी आइडिया? सर ए और बी में बराबर सही हो रहा है सर। बेटा देखो, ये एक, जैसे ही हम किसी कंपटीशन को क्रैक करेंगे ना तो क्या होगा, हमारे पास एक कोड होगा, वो कोड दे दिया। यहां पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले, ये कितने टाइम्स एग्जीक्यूट कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और यहां पे एक सीरीज डिस्प्ले हो रही है, ये देखो डिस्प्ले में एक सीरीज डिस्प्ले पे आ रही है, कंप्लीट सीरीज एबीसी, ए बी एंड सी के कॉम्बिनेशन को डिस्प्ले कर रहा है। ए बी एंड सी का हमें कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, हमें ए बी सी जस्ट एक बार चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये बता सकते हो? उसके लिए हमें क्या करना चाहिए बताओ? ये कॉम्बिनेशन में डिस्प्ले पे आ रहा है। यहां पे अगर मैंने न्यू लाइन डाल दिया, ये देखो यहां पे मैंने डाल दिया एंड लाइन, अब ध्यान से देखना क्या हो रहा है। एंड लाइन डाल दिया, एग्जीक्यूट किया, अब यहां पे मैंने डाल दिया 5, ये देखो आउटपुट में क्या आ रहा है। पहला ट्रिपलेट आ रहा है बेटा 2 3 5, उसके बाद सेकंड कॉम्बिनेशन कौन सा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 3 5 8, उसके बाद 5 8 एंड 13, मींस ए बी एंड ए प्लस बी तीनों का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है ईच टाइम, और 5 टाइम्स ये शो कर रहा है। पता चल गया या नहीं? यस सर। फिबोनाची सीरीज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है ये प्रोग्राम। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये कंटेंट चाहिए 2 3 उसके बाद 5 8, ये वाली सीरीज। इसके लिए मैं क्या करूंगा ये बताओ मुझे, ये आप बताओगे? सर उसको मेन में प्रिंट करेंगे सर ए और बी को। अब देखो मैं यहां पे प्रोग्राम छोड़ने लगा हूं, मैं प्रोग्राम आपको सेंड करूंगा, आप कल मुझे प्रोग्राम कंप्लीट करके बताओगे कि सर ऐसे ये डिस्प्ले होगा। माइनर सी चेंज है इसमें, ज्यादा कंप्लेक्सिटी नहीं है। इज इट ओके? यस सर। मैं इसको आपके साथ शेयर करने लगा हूं, एक अटेंडेंस अभी शेयर कर देता हूं।